Welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya, and today we will be discussing a very interesting topic, that is disorders of respiratory system. Yes, this is also one of those topics जिसमें से NEET examination में हमेशा एक question आता है, and this topic is also from the chapter Breathing and Exchange of Gases from grade 11. But today within 10 minutes we will be covering this topic completely, and then in 10 minutes 4 marks will be in your hand. So let's get started. Yes, so when we talk about the disorders of respiratory system, it includes all these disorders, including your influenza, cystic fibrosis, pneumonia, tuberculosis, emphysema, asthma, chronic bronchitis, and also lung cancer. But we focus on 3 major respiratory disorders which are mentioned in your NCERT. So let's get started with the first respiratory disorder, that is going to be asthma, okay? First of all, I have seen a lot of people pronouncing it as asthma, but being a NEET aspirant, being a biology student, please do not mess up with the pronunciation. It is asthma, not asthma, okay? Let's get started. So, when we talk about the asthma, it is actually a disorder which is like a difficulty in breathing that causes wheezing due to inflammation of ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स. सो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इस डिसऑर्डर में ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसे ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, एंड जब वो ब्रीथ करता भी है तो एक व्हीजिंग साउंड आता है, या हम कह सकते हैं कि एक विस्लिंग साउंड आने लगता है. क्यों आने लगता है? क्योंकि एज्मा उन पेशेंट्स को होता है जिनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स यू ऑलरेडी नो that these are the branching characteristic features when we talk about the lungs, okay? Primary bronchi, secondary bronchi, then comes the tertiary bronchi, and then वो आगे जाके और ज्यादा bifurcate होते हैं bronchioles में. तो जिन भी patients की bronchi और bronchioles में infection आते हैं, they are not able to breathe properly, and there is a lot of infection in that. That is why a wheezing or a whistling sound comes when they are trying to even breathe, okay? So spasm of smooth muscles present in the walls of the bronchi and the bronchioles, they result in narrowing of the airways. So basically क्या होता है कि bronchi और bronchioles में जब infection हो जाता है या inflammation हो जाता है तो वो smooth muscles और ज़्यादा contract हो जाती है. जब smooth muscles और ज़्यादा contract हो जाती हैं, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये होता है कि जो एयर का पाथवे है वो और ज्यादा नैरो हो जाता है. क्योंकि एयर का पाथवे नैरो हो गया, सो ऑटोमेटिकली देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड दैट इज हाउ द व्हीजिंग साउंड कम्स व्हेन द पेशेंट और व्हेन द पर्सन इज ट्राइंग टू ब्रीथ हु इज सफरिंग फ्रॉम asthma. Okay, here you can clearly see ये एक नॉर्मल लंग का representation है. यहाँ पे आपको नॉर्मल लाइनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि मसल्स आर रिलैक्स्ड. बट अगर ये एक एस्मेटिक लंग का representation आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मसल है वो टाइटन अप हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, जिसकी वजह से ये स्वॉलन लाइनिंग हो गई है, एक्सेस म्यूकस जमा हो गया है यहाँ पे, एंड आपको दिखाई दे रहा है कि जो एयर का पाथवे है वो बहुत ज्यादा नैरो हो गया है. क्योंकि एयर का पाथवे इतना नैरो हो गया है, सो ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है, एंड देन द व्हीजिंग साउंड कम्स. ओके, so as you can see, a whistling sound is produced during breathing resulting from a partially obstructed airway, correct? And that is why asthma के patients को आपने देखा होगा कि उन्हें वो पंप दिया जाता है, ठीक है. क्यों दिया जाता है वो पंप इसलिए दिया जाता है because that pump consists of antihistamine also, and then there are certain anti-inflammatory agents also, correct? Moving ahead towards the next disorder. Next disorder is known as emphysema. Emphysema आपका next respiratory disorder है, which is a chronic disorder जिसमें जो alveolar walls होती हैं they are damaged due to which the respiratory surface is decreased. Okay? आपको पहले से ही पता है ये बात कि जो alveoli है it is majorly responsible for exchange of gases, ठीक है. एम्फाइसेमा उन लोगों को होता है, पहली चीज सबसे मेजर कॉज है एम्फाइसेमा का सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है. जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको एम्फाइसेमा होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बिकॉज द एल्विलाई आर मोर फाइब्रस एंड दे आर लेस इलास्टिक. सो जब बहुत लोग सिगरेट स्मोकिंग करने लग जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज दैट द टार गेट्स कलेक्टेड, जिस वजह से जो एल्विलर वॉल्स है वो डैमेज हो जाती हैं. अब अगर एल्विलर वॉल्स ही डैमेज हो गई तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना होता है लंग्स में,
the structure, the organ that is majorly responsible for exchange of gases is your alveoli only, right? So if the alveolar walls are damaged, right, तो जो respiratory surface है वो automatically कम हो जाता है, मतलब exchange of gases properly नहीं हो पाता. You can see in this diagrammatic representation, एक healthy alveoli है, ठीक है. धीरे धीरे लोगों ने स्मोकिंग स्टार्ट करी, जिस वजह से हार्मफुल पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप होना चालू हो गए, ठीक है. एंड धीरे धीरे करके आपकी जो केमिकल्स है वो डिसॉल्व होने लग गए एल्वुलर वॉल में, उसके सेप्टम में, एंड देन द लार्ज एयर कैविटी लाइंड विद कार्बन डिपॉजिट्स फॉर्म, जिस वजह से ये आपकी कंडीशन हो जाती है लंग्स की इन एम्फाइसिमा. ओके, एम्फाइसिमा ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं एम्फाइसिमा का, तो उसमें जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है और टाइडल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है. मतलब जो हम नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं उस वक्त, क्योंकि एल्वुलर वॉल्स डैमेज है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता तो ऑटोमेटिकली जो टाइडल वॉल्यूम का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और रेसिडुअल वॉल्यूम का बढ़ जाएगा, ठीक है. रेसिडुअल वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन एम्फाइसिमा, मेजर कॉजेस सिगरेट स्मोकिंग. Moving ahead towards the last respiratory disorder that's mentioned in your NCERT, which is occupational respiratory disorder. By the name itself, it's pretty clear कि बहुत सारे ऐसे occupation होते हैं, बहुत सारी ऐसी industries होती हैं जिस वजह से लोगों को respiratory disorder हो जाता है उनके occupation की वजह से, and that is why these disorders are known as occupational respiratory disorder. ठीक है. So in certain industries, especially those involving the grinding और स्टोन ब्रेकिंग, एंड क्या होता है कि जब ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डस्ट होती है वहां पे, ठीक है. तो वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी जो है हमारा, वो पूरी तरीके से कोप अप नहीं कर पाता इस सिचुएशन के, क्योंकि रोज वो सेम चीज हो रही है, क्योंकि ऑक्यूपेशन है उनका, राइट. एंड सो मच ऑफ डस्ट इज गेटिंग सबमिटेड एंड इट इज एक्चुअली गेटिंग सबमर्ज्ड इन द लंग्स. तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, करेक्ट. सो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस मतलब जब फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन बढ़ने लगता है या उसका ग्रोथ बढ़ने लगता है तो उसे हम कहते हैं फाइब्रोसिस, ठीक है. एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, एंड दैट इज वाई जो भी इस तरीके की इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है दैट दे शुड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, ठीक है. अर्लियर टीचर्स वर ऑल्सो they were also facing a lot of respiratory disorders, क्योंकि अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, अभी हम मार्कर्स यूज कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड है हमारे पास, बट अर्लियर चौक और डस्टर होता था. तो जो चौक से हम लिखते थे, ठीक है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स आते थे, और ये क्योंकि ऑक्यूपेशन था तो रोज का काम था, जिस वजह से इवन अ लॉट ऑफ टीचर्स ऑल्सो दे यूज्ड टू फेस द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अगर मैं न्यूमोकोनियोसिस की भी बात करूं, दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ लंग डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, और डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स की वजह से डिफरेंट डिजीजेस के होने के चांसेस है. फॉर एग्जाम्पल, सिलिका की वजह से सिलिकोसिस होता है, एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस होता है, आयरन की वजह से साइड्रोसिस होता है, कोल डस्ट या स्मोक की वजह से एंथ्राकोसिस होता है, जिसे हम ब्लैक लंग डिसीज भी कहते हैं, ठीक है. एंड देन कॉटन डस्ट की वजह से बाइसिनोसिस होता है, जिसे ब्राउन लंग डिजीज भी कहा जाता है. तो ये डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स है. अगर कंटिन्यूसली इन डस्ट पार्टिकल्स का इनहेलेशन होता रहा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है. So now I hope that this particular topic is pretty clear to you, and if it is, you will be definitely able to solve this particular question. The question says that name the chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking. Here are your options: respiratory acidosis, emphysema and asthma. Okay, so I am going to wait for your answers in the comment section. Do not forget to like this video if you found this video helpful. Also subscribe to the channel, and I am waiting for your answers in the comment box. If you gave me the correct answer, I will be giving you a thumbs up over there. Thank you.